انہیں احساس تھا کہ وہ مدینہ سے بہت دور بہت دور اجنبی زمین پر آ گئے ہیں جہاں اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خالد نے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ہر طرف اپنی آنکھیں بچھا رکھی تھیں۔ خالد فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ان کے خیمے کے قریب دو گھوڑے رکے، سوار کود کر اترے۔ خالد نماز با جماعت پڑھ کر آ رہے تھے، ان سواروں کو دیکھ کر آن کے قریب جا رکے۔ گھوڑوں کا پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے دریا میں سے گزر کر آئے ہوں، ان کی سانسیں پھونکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ سواروں کی حالت گھوڑوں سے بھی بدتر تھی۔ شیر خالد نے کہا، بن آصف کیا خبر لائے ہو؟ اندر چلو، ذرا دم لے لو۔ دم لینے کا وقت نہیں سالار، بن آصف نے خالد کے پیچھے ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آتش پرستوں کا سیلاب آ رہا ہے، ہم نے یہ خبر عیسائیوں کی ایک بستی سے لی ہے۔ بکر بن وائل کی الگ فوج تیار ہو گئی ہے، یہ مدعے کی فوج کے ساتھ اندرزغور نام کے ایک سالار کی زیر کمان آ رہی ہے۔ دوسری فوج بیمن جازوے کی زیر کمان دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ کہ یہ فوجیں ہم پر مختلف سمتوں سے حملہ کریں گی؟ خالد نے پوچھا۔ نہیں، شیر نے جواب دیا، دونوں فوجیں دلجا میں اکٹھا ہوں گی، اور تم کہتے ہو کہ سیلاب کی طرح آگے بڑھیں گی، خالد نے کہا۔ کماندار نے یہی بتایا ہے، بن آصف بولا۔ ان دونوں کی رپورٹ ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ایک شتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اونٹ سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا۔ اس نے خالد کو بتایا کہ فلاں سمت سے ایرانیوں کی ایک فوج بیمن جازویے کی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بھیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے بیمن کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اندرغور اور بیمن جازویے کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت تھوڑے سے وقفے کے دلجا پہنچتی، مگر ہوا یوں کہ اندرزغور پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسرا اردشیر کے قریب تھا، اس لیے اردشیر اس کے سر پر سوار تھا۔ بیمن دور تھا، اسے کوچ کا حکم قاصد کی زبانی پہنچا تھا، وہ 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندرزغور کے ساتھ تھی۔ بیمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی، صرف یہ ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ اردشیر نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ نہیں مول لے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھ ہو سکتی تھی۔ اندرزغور کی فوج کا تو شمار ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے، ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کے جو فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گستی مدعے کو جا رہے تھے، وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے نہیں تھے، ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بھگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدین نے تیروں کا می برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی، ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا، کشتیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھینے کی بھی ہوش نہیں تھی، کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچی تھیں اور دور دور کنارے سے لگی تھیں، اور زرتشت کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدعے کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ 2-2 4-4 اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندرزغور کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے، وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے، ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے، ان سے بات کرتے تھے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بے تاثر چہروں سے ہر کسی کو دیکھتے تھے۔ بعض بولنے کے بجائے چینکھیں مارتے اور دوڑ پڑتے تھے، پیشتر اس کے کہ یہ ساری فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائے۔ انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو، ان کے سالار اندرزغور نے حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدعے کی یہ فوج تازہ دم تھی، اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے،
लेकिन दरिया के मरके से बचे हुए सिपाही जब रास्ते में इस ताज़ा दम फौज में शामिल हुए तो हल्के से खौफ की एक लहर सारी फौज में फैल गई। शिकस्त खुर्दा सिपाहियों ने अपने आप को बेकसूर साबित करने और ये जाहिर करने के लिए कि वो बेजिगरी से लड़े हैं, मुसलमानों के मुतालिक अपनी फौज को ऐसी बातें सुनाई जैसे मुसलमानों में कोई माफौक अलफितरत ताकत हो और वो जिन भूत हों। खालिद की जंगी क़यादत की यह खूबी थी कि वो दुश्मन को जिस्मानी शिकस्त ऐसी देते थे कि दुश्मन पर नफसियाती असर भी पड़ता था, जो एक अरसे तक दुश्मन के सिपाहियों पर बाकी रहता, और इसी दुश्मन के साथ जब एक और मरका लड़ा जाता तो वो नफसियाती असर खालिद को बहुत फायदा देता था। ये असर पैदा करने के लिए खालिद दुश्मन को पसपा करने पर ही मुतमईन नहीं हो जाते थे, बल्कि दुश्मन का ताक़ुब करते और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान पहुंचाते थे। खालिद के जासूसों ने ये इत्तला भी उन्हें दी कि पिछले मरके के भागे हुए सिपाही भी मुद्दाएं से आने वाली फौज में शामिल हो रहे हैं। खालिद ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें नई सूरत हाल से आगाह किया। मेरे अजीर साथियों, खालिद ने उन्हें कहा, हम यहां सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर लड़ने के लिए आए हैं। जंगी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो हम फारिस की फौज से टुकर लेने के काबिल नहीं। अपने वतन से हम बहुत दूर निकल आए हैं, हमें कुमक नहीं मिल सकती। हम वापस भी नहीं जाएंगे। हम फारसियों को और किसरह को नहीं, आग के खुदाओं को शिकस्त देने का अज़्म किए हुए हैं। मैं तुम सब के चेहरों पर थकन के आसार देख रहा हूं। तुम्हारी आंखें भी थकी थकी सी हैं और तुम्हारी बातों में भी थकन है, लेकिन रब कबा की कसम हमारी रूहें थकी हुई नहीं। हमें अब रूह की ताकत से लड़ना है। ऐसी बातें ज़बान पर ना ला। इब्न वलीद। एक सालार आसिम बिन उमरो ने कहा, हमारे चेहरों पर थकन के आसार हैं, मायूसी के नहीं, हमारे इरादों में कोई थकन नहीं। इब्न वलीद। दूसरे सालार अदी बिन हातिम ने कहा, हमने आराम कर लिया है, सिपा ने भी आराम कर लिया है। मैं इसीलिए यहां खैमाजन हो गया था कि अल्लाह के सिपाही आराम कर लें। खालिद ने कहा, तुम्हारे इरादे थके हुए नहीं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं दूसरी बातें करना चाहता हूं जो ज्यादा जरूरी हैं। तुमने देखा है कि हमने फारसियों को पहले मरके में शिकस्त दी तो वो फिर हमारे सामने आ गए, उनके साथ उनके वो सिपाही भी आ गए जो पहले मरके से भागे थे। अब मुझे फिर इत्तला मिली है कि दूसरे मरके से भागे हुए सिपाही मुद्दाएं से आने वाली फौज के साथ रास्ते में मिलते आ रहे हैं। अब तुम्हें ये कोशिश करनी है कि अगले मरके में आतिश परस्तों का कोई सिपाही जिंदा ना जा सके। हलाक करो, आ पकड़ लो। कसरा की फौज का नाम व निशान मिटा देना चाहता हूं, हमारा अल्लाह यूं ही करेगा। 3-4 आवाजें सुनाई दीं। सब अल्लाह के इख्तियार में है। खालिद ने कहा, हम इसी की खुशनुदी के लिए घरों से इतनी दूर आ गए हैं। अब जो सूरत हमारे सामने है इस पर संजीदगी से गौर करो। ये फैसले जज्बात से नहीं किए जा सकते हैं। इस हकीकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि फारसियों की जंगी ताकत और तादाद जो अब आ रही है, हम इसका मुकाबला करने के काबिल नहीं। लेकिन पसपाई को दिल से निकाल दो। ताज़ा इत्तिलात के मुताबिक मुद्दाएं की फौज दजला उबूर कर आई है। आज रात फरात को भी उबूर कर लेगी, फिर वो दिलजा पहुंच जाएगी। उनकी दूसरी फौज भी आ रही है। हमारे जासूस उसका कोच देख रहे हैं और मुझे इत्तिलात दे रहे हैं। खुदाए जुलजलाल हमारी मदद कर रहा है। ये इसी की जात बारी का करम है कि फारिस की ये दूसरी फौज जो एक सालार बहमन जादुए की जेर कमान आ रही है, इसकी रफ्तार तेज नहीं, वो पड़ाव ज्यादा कर रही है। हम अपनी कलील नफरी से दोनों फौजों से टुकर ले सकते हैं। मेरी अक्ल अगर सही काम कर रही है तो मैं यही एक बेहतर तरीका समझता हूं कि मुद्दाएं की फौज जो सालार उंदरज़गुर के साथ आ रही है वो दिलजा तक जल्दी पहुंच जाएगी। पेशतर इसके कि बहमन की फौज भी इससे आमले हम उंदरज़गुर पर हमला कर देंगे। क्या मैंने बेहतर सोचा है? इससे बेहतर और कोई फैसला नहीं हो सकता। सालार आसिम ने कहा, मुझे मुद्दाएं की इस फौज में एक कमजोरी नजर आ रही है। इस फौज में ईसाइयों की फौज के कबीलों के लोग भी हैं जो लड़ना तो जानते होंगे, लेकिन उन्हें जंग और बाकायदा मरके का तजर्बा नहीं। मैं उन्हें एक मुसल्लह हुजूम कहूंगा। दुश्मन की दूसरी कमजोरी वो सिपाही हैं जो पिछले मरके से भागे हुए मुद्दाएं की फौज को रास्ते में मिले थे। मुझे यकीन है कि वो डरे हुए होंगे। उन्होंने अपने हजारों साथियों को तलवारों, तीरों और बर्छियों का शिकार होते देखा है। पसपाई की सूरत में वो सबसे पहले भागेंगे। खुदा की कसम उमरो, खालिद ने पुरजोश आवाज में कहा, तुझ में वो अक्ल है जो हर बात समझ लेती है। खालिद ने इन
सब पर निगाह दौड़ाई जो वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, तुम में कोई एक भी ऐसा नहीं जो इस बात को ना समझ सका हो। लेकिन दुश्मन के इस पहलू को ना भूलना कि इसके पास साजो सामान और रसद और कुमक की कमी नहीं। सिर्फ उंदरज़गुर की फौज हमारी फौज से 6 गना ज्यादा है। मैंने जो तरीका सोचा है वो मौजू और मुअस्सर जरूर होगा, लेकिन आसान नहीं। लड़ना सिपाने है। वो समझते हैं कि हम यहां क्यों आए हैं। फिर भी उन्हें अच्छी तरह से समझा दो कि हम वापस जाने के लिए नहीं आए और हम मुद्दाए में होंगे खुदाए बुजुर्ग व बरतर के हुजूर पहुंच जाएंगे। 2 मौर्रिखों तबरी और याकूत ने लिखा है कि यह फहमो फिरासत की जंग थी। अगर तादाद और साजो सामान और दीगर जंगी अहवाल व कवाइफ को देखा जाता तो आतिश परस्तों और मुसलमानों का कोई मुकाबला ही न था। खालिद का चेहरा उतरा हुआ था। उनकी रातें गहरी सोच में गुजर रही थीं। खैमागाह में वो चलते चलते रुक जाते और गहरी सोच में खो जाते। उन्हें जमीन पर बैठकर उंगली से मिट्टी पर लकीरें डालते हुए भी देखा गया। खालिद के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि वो आतिश परस्तों से फैसला कुन मरका लड़े बगैर वापस न आने का अहद कर चुके थे। उन्होंने हसब मामूल अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह दाएं और बाएं पहलुओं पर सालार आसिम बिन उमरो और सालार अदी बिन हातिम को रखा। अपने साथ उन्होंने सिर्फ 1500 नफरी रखी, जिनमें पैदल थे और घड़सवार भी। इस तकसीम के बाद उन्होंने कोच का हुक्म दिया। ये हुक्म उन्होंने जासूस की इस इत्तला के मुताबिक दिया कि अंदर ज़ुगुर की फौज दरियाए फरात उबूर कर रही है। खालिद ने अपनी रफ्तार ऐसी रखी कि आतिश परस्त दिलजा में जो नहीं पहुंची वो उसके सामने हो। ये जंगी फहम वफरास्त का गैर मामूली मुजाहरा था। ऐसे ही हुआ जैसे उन्होंने सोचा था। उंदरज़गुर की फौज दिलजा पहुंची तो उसे खेमे गाड़ने का हुक्म मिला, क्योंकि उसे बहमन की फौज का इंतजार करना था। फौज इतने लंबे सफर की थकी हुई खेमे गाड़ने लगी और उसके साथ ही शोर बपा हो गया कि बहमन जाजुए की फौज आ रही है। तमाम सिपा इसके इस्तकबाल में खुशी का शोर उगल मचाने लगी, लेकिन ये शोर अचानक खामोश हो गया। ये मदीना की फौज है, किसी ने बुलंद आवाज से कहा, और उसके साथ ये कई आवाजें सुनाई दी, दुश्मन आ गया है, तैयार होशियार। उंदरज़गुर घोड़े पर सवार आगे गया और अच्छी तरह देखा। ये खालिद की फौज थी और जंगी तरतीब में रहकर पड़ाव डाल रही थी। ये फौज खेमे नहीं गाड़ रही थी, जिसका मतलब ये था कि मुसलमान लड़ाई के लिए तैयार है। सालार आला उंदरज़गुर को एक सालार ने कहा, हमारी दूसरी फौज नहीं पहुंची। मालूम हुआ है कि वो अभी दूर है, वरना हम उन मुसलमानों को अभी कुचल डालते। ये तैयार हैं और हमारी सिपा थकी हुई है। क्या तुम नहीं देख रहे कि उनकी तादाद कितनी थोड़ी है? उंदरज़गुर ने कहा, बमुश्किल 10,000 होंगे। मैं उन्हें चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं समझता। उनके गेवड़ सवार दस्ते कहाँ हैं? कहाँ हो सकते हैं? उसके सालार ने कहा, खुला मैदान है, जो कुछ है साफ नजर आ रहा है। मालूम होता है कि हमारे सालारों को और कमांदारों को एक एक के 6-6 नजर आते रहे। उंदरज़गुर ने कहा, शिकस्त खाकर भागने वालों ने मुद्दाए में बताया था कि मुसलमानों का सालार बड़ा जबरदस्त है और उसके सवार लड़ने के इतने माहिर हैं कि किसी के हाथ नहीं आते। मुझे तो उनका सालार कहीं नजर नहीं आ रहा। हमें झूठी इत्तला दी गई है। सालार ने कहा, हम बहमन का इंतजार नहीं करेंगे, इसके आने तक हम उन मुसलमानों को खत्म कर चुके होंगे। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों के गेवड़ सवार वहां नहीं थे। वही थोड़े से सवार थे जो पियादों के साथ थे या खालिद के साथ कुछ गेवड़ सवार मुहाफिज थे। आतिश परस्तों के हौसले बढ़ गए। उंदरज़गुर के लिए यह फतह बड़ी आसान थी। खालिद ने इतनी थोड़ी सी नफरी के साथ इतने बड़े लश्कर के सामने आकर गलती की थी। जिस मैदान में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं वो हमवार मैदान था। इसके दाएं और बाएं 2 बुलंद टेकरियां थीं। एक टीकुर्री आगे जाकर मुड़ गई थी। इसके पीछे एक और टीकुर्री थी। खालिद ने अपनी फौज को जंगी तरतीब में कर रखा था। इधर आतिश परस्त भी जंगी तरतीब में हो गए और दोनों फौजों के सालार एक दूसरे का जायजा लेने लगे। खालिद ने देखा कि आतिश परस्तों के पीछे दरिया था, लेकिन उंदरज़गुर ने अपनी फौज को दरिया से तकरीबन 1 मील दूर रखा था। आतिश परस्तों के पहले सालारों ने अपना अकब दरिया के बहुत करीब रखा था ताकि अकब महफूज रहे, लेकिन उंदरज़गुर ने अपने अकब की इतनी एहतियात न की। इसे यकीन था कि ये मुट्ठी भर मुसलमान इसके अकब में आने की जुर्रत नहीं करेंगे। ज़रतुश्त के पुजारियों, उंदरज़गुर ने अपनी सिपा से खिताब किया, ये हैं वो मुसलमान जिनसे हमारे साथियों ने शिकस्त खाई है।
उन्हें अपनी आंखों से देख लो, क्या उनसे शिकस्त खाकर तुम डूब नहीं मरोगे? क्या तुम उन्हें फौज कहोगे? ये डाकुओं और लुटेरों का गिरोह है, इनमें से कोई एक भी जिंदा न जाए। वो दिन यूं ही गुजर गया। सालार एक दूसरे की फौज को देखते और अपनी अपनी फौज की तरतीब सीधी करते रहे। अगले रोज खालिद ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। फारिस की फौज तह दर तह खड़ी थी। मुसलमानों का हमला तेज और शदीद था, लेकिन दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। दुश्मन ने अपनी अगली सफ को पीछे करके ताजा दम सिपाहियों को आगे कर दिया। खालिद ने एक और हमले के लिए अपने चंद एक दस्तों को आगे भेजा। घुमसान का मरका रहा, लेकिन मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। आतिश परस्तों की तादाद भी ज्यादा थी और वो नीम जरापोश भी थे। मुसलमानों को यूं महसूस हुआ जैसे वो एक दीवार से टकरा कर वापस आ गए हों। खालिद ने कुछ देर और हमले जारी रखे, मगर मुजाहिदीन थकन महसूस करने लगे। मुतअद्दिद मुजाहिदीन जख्मी होकर बेकार हो गए। खालिद ने इस ख्याल से कि उनकी फौज हौसला न हार बैठे खुद हमले के लिए सिपाहियों के साथ जाने लगे। इससे मुसलमानों का जज्बा तो कायम रहा, लेकिन उनके जिस्म शल हो गए। आतिश परस्त उन पर कहकहे लगा रहे थे। इस वक्त तक मुसलमानों ने खालिद की जेर कमान जितनी लड़ाइयां लड़ी थीं, इनमें ये पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों में अपने सालार के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज दबा दबा सा था, लेकिन फौज में बेइत्मीनानी साफ नजर आने लगी। खालिद जैसे अजीम सालार के खिलाफ सिपाहियों की बेइत्मीनानी अजीब सी बात थी। वो पूछते थे कि अपना सवार दस्ता कहाँ है। वो महसूस कर रहे थे कि खालिद अपने मखसूस अंदाज से नहीं लड़ रहे। खालिद सिपाहियों की तरह हर हमले में आगे जाते थे, फिर भी उनके सिपाहियों को किसी कमी का एहसास हो रहा था। दुश्मन की इतनी ज्यादा नफरी देखकर भी मुसलमानों के हौसले टूटते जा रहे थे। उन्हें शिकस्त नजर आने लगी थी। आतिश परस्तों ने अभी एक भी हुल्ला नहीं बोला था। अलिफ इंदर्जगौर मुसलमानों को थकाकर हमला करना चाहता था। मुसलमान थक चुके थे। खालिद अपनी फौज की ये कैफियत देख रहे थे, इसीलिए उन्होंने हमले रोक दिए थे। वो सोच ही रहे थे कि अब क्या चाल चली कि आतिश परस्तों की तरफ से एक देव हैकल आदमी सामने आया और उसने मुसलमानों को ललकार कर कहा कि जिसमें मेरे मुकाबले की हिम्मत है आगे आ जाए। ये 1000 मर्द पहलवान और तेगजन था। फारिस में 1000 मर्द का लक़ब इस जंगजू पहलवान को दिया जाता था जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। 1000 मर्द का मतलब था कि ये एक आदमी 1000 आदमियों के बराबर है। अंदर ज़ुग़ुर इस देव को आगे करके मुसलमानों का तमाशा देखना चाहता था। मुसलमानों में इसके मुकाबले में उतरने वाला कोई ना था। खालिद घोड़े से कूदकर उतरे, तलवार निकाली और 1000 मर्द के सामने जा पहुंचे। कुछ देर दोनों की तलवारें टकराती रहीं और दोनों पैंतरे बदलते रहे। आतिश परस्त पहलवान मस्त भैंसा लगता था। इसमें इतनी ताकत थी कि इसका एक वार इंसान को 2 हिस्सों में काट देता। खालिद ने यह तरीका इख्तियार किया कि वार कम कर दिए, इसे वार करने का मौका देते रहे ताकि वो थक जाए। इस पर उन्होंने ये जाहिर किया जैसे वो खुद थक कर चूर हो गए। ईरानी पहलवान खालिद को कमजोर और थका हुआ आदमी समझकर उनके साथ खेलने लगा। कभी तलवार घुमाकर कभी ऊपर से नीचे को वार करता और कभी वार करता और हाथ रोक लेता। वो तंजिया कलामी भी कर रहा था। वो अपनी ताकत के घमंड में लापरवाह सा हो गया। एक बार उसने तलवार यूं घुमाई जैसे खाला की गर्दन काट देगा। खालिद ये वार अपनी तलवार पर रोकने के बजाय तेजी से पीछे हट गए। पहलवान का वार खाली गया तो वो घूम गया। उसका पहलू खालिद के आगे हो गया। खालिद इसी के इंतजार में थे। उन्होंने नोक की तरफ से पहलवान के पहलू में तलवार का इस तरह वार किया कि बर्छी की तरह तलवार उसके पहलू में उतार दी। वो गिरने लगा तो खालिद ने इसके पहलू से तलवार खींचकर ऐसा ही एक और वार किया और तलवार उसके पहलू में दूर अंदर तक ले गए। तबरी और अबू यूसुफ ने लिखा है कि पहलवान गिरा और मर गया। खालिद इसके सीने पर बैठ गए और हुक्म दिया कि उन्हें खाना दिया जाए। उन्हें खाना दिया गया जो उन्होंने 1000 मर्द की लाश पर बैठकर खाया। इस इनफरादी मरके ने मुसलमानों के हौसले में जान डाल दी। आतिश परस्त सालार उंदरज़गुर ने भांप लिया था कि मुसलमान थक गए हैं, चुनांचे इसने हमले का हुक्म दे दिया। इसे बजा तौर पर अपनी फतह की पूरी उम्मीद थी। ये आतिश परस्त समंदर की मौजों की तरह आए। मुसलमानों को अब कुछ ले जाना था। उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए बेजिगरी से मुकाबला किया।
एक मुसलमान का मुकाबला 10-10, 12-12 आतिश परस्तों से था। अब हर मुसलमान जाती जंग लड़ रहा था, उसके बावजूद उन्होंने डिसिप्लिन का दामन न छोड़ा और भगदड़ न होने दी। इस मौके पर भी सिपाहियों को ख्याल आया कि खालिद अपने पहलुओं को इस तरीके से क्यों नहीं इस्तेमाल करते जो उनका मखसूस तरीका था। खालिद खुद सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे और उनके कपड़ों पर खून था जो उनके किसी जख्म से निकल रहा था। चूंकि ईरानियों की नफरी ज्यादा थी, इसलिए जानी नुकसान उन्हीं का ज्यादा हो रहा था। इंदरज़गुर ने अपने दस्तों को पीछे हिट लिया और ताजा दम दस्तों से दूसरा हमला किया। यह हमला ज्यादा नफरी का था। मुसलमान इनमें नजर ही नहीं आते थे। इंदरज़गुर का यह अहद पूरा हो रहा था कि एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं जाने देंगे। इंदरज़गुर ने मुसलमानों का काम जल्दी तमाम करने के लिए मजीद दस्तों को हल्ला बोलने का हुक्म दे दिया। अब तो मुसलमानों के लिए भाग निकलना भी मुमकिन न रहा। वो अब जख्मी शेरों की तरह लड़ रहे थे। खालिद इस मरके से आगे निकल गए थे। उनका अलमबरदार उनके साथ था। उन्होंने इल्म अपने हाथ में लेकर ऊपर किया और एक बार दाएं और एक बार बाएं किया, फिर इल्म अलमबरदार को दे दिया। ये एक इशारा था। इसके साथ ही मान जंग के पहलुओं में जो टेकरियां थीं, इनमें से 2000 गेवर सवार निकले। उनके हाथों में बर्छियां थीं जो उन्होंने आगे कर ली। घोड़े सर पर दौड़े आ रहे थे। वो एक तरतीब में होकर आतिश परस्तों के अकब में आ गए। जंग के शोर वगल में आतिश परस्तों को इस वक्त पता चला कि उन पर अकब से हमला हो गया है, जब मुसलमानों के गेवर सवार उनके कर पर आ गए। ये थे मुसलमानों के वो सवार दस्ते जिन्हें इंदरज़गुर ढूंढ रहा था। खुद खालिद की सिपा पूछ रही थी कि अपने सवार दस्ते कहाँ हैं। खालिद ने अपनी नफरी की कमी और दुश्मन की नफरी की इफरात देखकर यह तरीका इख्तियार किया कि रात को तमाम गेवर सवारों को टिकुर्री के अकब में इस हिदायत के साथ भेज दिया था कि अपनी फौज को भी पत्ता न चल सके। उनके आलम के दाएं बाएं मिलने का इशारा मुकर्रर किया था। घोड़ों को ऐसी जगह छुपाया गया था जो दुश्मन से 1.5 मील के लगभग दूर थी। वहां से घोड़ों के हनानाने की आवाज दुश्मन तक नहीं पहुंच सकती थी। एक रवायत यह भी है कि रात को घोड़ों के मुंह बांध दिए गए थे। इन 2000 गेवर सवारों के कमांडार बिसर बन इब्बी रहम और सईद बन मर्रा थे। जब सुबह लड़ाई शुरू हुई थी तो उन दोनों के कमांडारों ने गेवर सवारों को पाबरिकाब कर दिया था और खुद एक टिकुर्री पर खड़े रहकर इशारे का इंतजार करते रहे थे। आतिश परस्तों पर अकब से क़यामत टूटी तो खालिद ने अगली चाल चली जो पहले से तय की हुई थी। पहलुओं के सालारों आसिम बिन उमरा और अदी बिन हातिम ने लड़ते हुए भी अपने आप को बचा कर रखा हुआ था। उन्हें मालूम था कि क्या करना है। जब गेवर सवारों ने दुश्मन पर अकब से हल्ला बोला तो पहलुओं के उन दोनों सालारों ने अपने अपने पहलू फैलाकर आतिश परस्तों को घेरे में ले लिया। दुश्मन को धोखा देने के लिए खालिद ने अपना महफूजे रिजर्व भी मरके में पहले ही झोंक दिया था।